6,975 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಚಾಲನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು 6,975 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 376 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಗುರುವಾರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 376 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 6,975 ಕೋಟಿ ರುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಮಾನಗಳ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಆ ಕನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರಂತ ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ उदाहरण और कालावधि भालू अभिवृद्धि आगे। इसमें कर्नाटक में 177 किलोमीटर है जिसकी कीमत 6,500 करोड़ है और उत्तरी कर्नाटक और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में इससे जो कनेक्टिविटी होगी वहाँ का विकास होगा, पर्यटन और तीर्थ यात्रा भी बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जनवरी 2025 के पहले हम निश्चित रूप से इसका पूरा करेंगे। लैंड पोजीशन में थोड़ा सा मंत्री जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉम्पेंसेशन के पैसे हमने जमा कर दिए हैं कर्नाटक में, थोड़ा इसका लैंड एक्विजिशन तेज़ी से हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट बहुत निश्चित फास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट भी कर्नाटक के लिए बहुत उपयोगी होगा। बेंगलोर से मैसूर हमने ऑलरेडी हाईवे बना दिया है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है 117 किलोमीटर का और मेरा विश्वास है कि इसमें से 1.25 घंटे में अब बेंगलोर से मैसूर जाना आसान होगा। और इसी हाईवे को कर्नाटक के रिंग रोड से जोड़ने के कारण जो बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक आता है वो नहीं आएगा और इसके कारण अब मैसूर भी आईटी सिटी बन रही है। पोर्ट कनेक्टिविटी में आदरणीय मंत्री जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑनर पोर्ट कनेक्टिविटी में 4 लेनिंग के रोड का काम हमने शुरू कर दिया। करीब 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये पोर्ट डेवलप होने से कर्नाटक का बहुत विकास होगा। पर यहाँ CRZ का क्लियरेंस न मिलने के कारण हमको प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और काम अधूरा छोड़ना पड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये CRZ का प्रपोजल अगर जल्दी आएगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैंगलोर के पोर्ट कनेक्टिविटी में भी ये स्ट्रेच फ्रॉम सुरतकाल टू नंथुर ये कंप्लीट कर दिया है। एडिशनल फ्लाईओवर अभी बना रहे हैं और इससे पडील जंक्शन टू मारोली और फ्रॉम नंथुर ये इसका भी काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि पोर्ट अगर अच्छे होंगे तो कर्नाटक के विकास की और गति बढ़ेगी। जो बेलेकरी पोर्ट है उसमें 2 लेन पेव शोल्डर बेलेकरी पोर्ट टू कुमठा सिरसी ये भी काम 60% पूरा हुआ है
और इसमें भी हम 500 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। थोड़े लैंड एक्विजिशन के इशू है, वो अगर पूरे होंगे तो बहुत अच्छा जल्दी ये पूरा होगा। बेलेकरी पोर्ट कनेक्टिविटी पार्ट 2, ये भी करीब 74.8 किलोमीटर है। इसका भी करीब 21% काम कच्ची पूरा हुआ है और फॉरेस्ट क्लियरेंस और ट्री कटिंग के परमिशन के लिए अटका हुआ है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कर्नाटक के विकास में ये रोड बहुत महत्वपूर्ण होंगे। टोटल जो रोपवे की बात है, हम लोग 350 रोपवे के प्रोजेक्ट करीब 1.5 लाख करोड़ के हमारे पूरे देश में कर रहे हैं। इसमें NHML और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनके बीच में MOU भी साइन हुआ है। ये जो MOU है उसके अनुसार राज्य में विकास के लिए 16 प्रपोजल PWD मिनिस्टर जी ने हमारे पास भेजे हैं और डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी भी हम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स कोदाचड्डी हिल्स एंड अंजनाई हिल्स, ये दोनों प्रोजेक्ट को अभी हमने मंजूरी दी है और 3 महीने के अंदर इसके कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा विश्वास मैं लोक प्रतिनिधियों को देना चाहता हूँ। ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें मुन्नियमगिरी और मधुगिरी फोर्ट, ये भी DFS बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी पर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कोदाचंद्री हिल्स रोपवे और कोप्पा डिस्ट्रिक्ट में अंजनाद्री हिल्स का, ये दोनों काम की मैंने ऑलरेडी घोषणा की है कि ये जल्दी शुरू होंगे। CRF में मंत्री जी ने कुछ पुराने काम जो 2009 से थे जो शुरू नहीं हुए और रद्द करने का प्रपोजल मुझे दिया है और निश्चित रूप से मैं आज 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर्नाटक के लिए CRF में मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। ये भी प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ सेतु बंधन प्रोजेक्ट में 22 ROB और ROB के वर्क्स करीब 850 करोड़ के हमने मंजूर कर दिए हैं और इसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें धारवाड़ में 2 है, बागलकोट में, कोप्पल में, हुएरी में, गड़ग और बागलकोट, ये सब फ्लाईओवर है। ये इसकी भी मंजूरी की घोषणा मैं करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे बीच में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हेलीकॉप्टर से बेलगांव जिले में काफ़ी जगह जाने का मौका मिला। मैं काफ़ी जगह गया तो ऊपर से मैं देख रहा था सब जगह गन्ना ही गन्ना था। मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूँ पर हमारे यहाँ आपके जैसा इतना गन्ना नहीं है। पर इसमें मैं ये मानता हूँ कि 2004 से मैं लगातार इथेनॉल के पीछे लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राज़ील भेजा था, उसके बाद लगातार हम काम कर रहे थे। थोड़ा सा इस साल थोड़ी पॉलिसी में शुगर शॉर्टेज के कारण थोड़ी अड़चन आई है पर वो टेम्पररी फेज़ है। पर अब इथेनॉल की इकोनॉमी बहुत डेवलप हुई है। मैं आदरणीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है जिस पे मैं दिल्ली में घूमता हूँ और वो गाड़ी 100% इथेनॉल पर चलती है और वो ये किसानों ने तैयार किया हुआ ग्रीन ईंधन है और जिसमें पेट्रोल के तुलना में इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है। और अगर ये गाड़ी का एवरेज पकड़ के अगर हिसाब किया जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि इंडियन ऑयल 400 जगह पर इथेनॉल के पंप डाल रहे हैं। आपके ज़िले में 28 शुगर मिलें हैं और मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहा है कि जितनी शुगर मिलें इथेनॉल बनाती है अब उनको इथेनॉल के पंप डालने की अनुमति दो। बजाज, TVS और हीरो और इन्होंने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल पर बनाई है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब बेलगांव ज़िले में जो इथेनॉल होता है वो पेट्रोल के पंप यहाँ के बंद करवाइए, सब जगह इथेनॉल के पंप शुरू करिए और यहाँ की स्कूटर, यहाँ की मोटरसाइकिल, यहाँ के ऑटो रिक्शा, यहाँ की कार अगर पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर चलेगी तो ग्राहकों को भी फायदा होगा और यहाँ प्रदूषण भी नहीं होगा और किसानों को इसका फायदा होगा। आज इथेनॉल जो है वो किसानों का है और गन्ने को जो भाव बढ़े हैं कल
तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के कारण जो पैसा मिलेगा वो किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। और हम यहाँ तक